बिटकॉइन के ऊपर अपनी पहली रिपोर्ट जो लिखी थी वो 2011 में थी। इस रिपोर्ट की वजह से बिटकॉइन की प्राइस $100 को क्रॉस कर गई है। One thing that I envy in people is when they are like so overeducated that I'm like, because you know that takes discipline, the commitment over so many years, and I guess that's probably another thing that adds to your vast portfolio of success. ये बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट हो, डिजिटल एसेट्स में हो, स्टॉक्स में हो या बॉन्ड्स में हो या कमोडिटीज में हो। Cannot go wrong. आप एक typical VPS की स्कीम में एंटर कर लें. Don't even take max equity exposure. Hello everyone and welcome to another episode of Stock Talk where we like to talk about a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. आज का एपिसोड थोड़ा सा crossover एपिसोड है between Stock Talk and Muscleverse because आज हम ना सिर्फ हमारी local regulated capital markets की बात कर रहे होंगे लेकिन we're going to be talking about the future of crypto in Pakistan क्योंकि हमारे साथ आज जो मौजूद हैं he is one of like the pioneers of the framework, the regulation that is revolving around crypto coming into and being kind of accepted in Pakistan and then eventually you know like us being able to regulate it somehow. तो हमारे साथ आज मौजूद हैं Mr. Ali Fareed Khwaja who is the chairman of K-Trade. Chairman of K-Trade, yes. Wow, and who also does like 3 million other things constantly, mashallah. So one of the most active people and popular in the finance world. No, it's kind of you to say that. Magar, just a correction, कि I'm not behind crypto regulation in Pakistan. Okay. But I have Just done guiding a body of work in that Just space guiding globally. them. And मैंने बिटकॉइन के ऊपर अपनी पहली रिपोर्ट जो लिखी थी वो 2011 में थी और उस वक्त जर्मन न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल लिखे कि इस रिपोर्ट की वजह से बिटकॉइन की प्राइस $100 को क्रॉस कर गई है। तो ये हाँ, तो आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्पेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड when it was a very small space and I've seen it grow. I've been involved in some aspect of it and I work for this company called Stacks Foundation which has made one of the largest donations to LUMS और वो पाकिस्तान के अंदर एक सेंटर फॉर डिजिटल एसेट रिसर्च उन्होंने सेटअप किया जिसमें आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स एंड आई हैव बीन वर्किंग to launch it. So I've been very involved in it, but not from a regulatory perspective yet. I would hand the regulation to you, मैं आपको बताऊं. There are better people. There are better people who are doing it. So I don't know I if just wanted to be ethically clear. and morally they'd be better. That's what I'm worried about. no, So one thing that you guys don't know, जो मुझे अभी actually कल पता चली है, that Khaldun told me that you did your bachelor's from Oxford or was it your master's? Gee, so I did a bachelor's from LUMS, did a double major in computer science and economics and a minor in maths. And then I went to Oxford to do a master's in financial economics. In financial economics. And the acceptance rate is 3%? It's low. I was a Rhodes Scholar, so the acceptance rate for that was actually very, very low. But Oxford was easier after that. So like ridiculously intelligent. And lucky, disgustingly overeducated. Lucky, just lucky. No! Certainly overeducated, yes. That is so cool. I genuinely envy you. One thing that I envy in people is when they are like so overeducated that I'm like, because you know that takes discipline, the commitment over so many years. And I guess that's probably another thing that adds to your vast portfolio of success. I don't know whether success is too immodest to say that, but I'm undereducated in my family because my father is a PhD and my sister is a PhD. So and my mom was a master's and used to teach as well. So yeah, so I think I'll be ranked undereducated by the standards. Imagine एक ऐसी family जहाँ Mr. Ali Fareed Khwaja is less educated. So, okay, so please guide me on कि अभी जो recently, I mean कुछ साल पहले Pakistan had a very firm stance कि नहीं, no crypto, this, that. फिर recently हमारी neighboring country ने कर लिया तो of course we have to follow through. And what brought about the change? What do you and K-Trade have to do with it? And how did all of this happen? How आप लोगों ने उनके दिमाग कैसे बदले? हमने नहीं बदले. Okay. I would not take any credit for that. Just because, again, there are better people who are doing it and many people who are working in it. So it will be completely over-exaggeration if I exaggerate my role in that. So आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हमने इस पे काम नहीं किया था और इसके बरक्स पाकिस्तानी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे क्रिप्टो पे. और चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाज अ टॉप 10 मार्केट फॉर क्रिप्टो अडॉप्शन
बाइनेंस और कुछ और प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस चीज़ पे तवज्जो दे, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी आपका ओपिनियन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस टेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में काफ़ी फ़ायदा है, नॉट जस्ट फॉर एज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल बट ऑल्सो फॉर बिटकॉइन माइनिंग, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का एक्सेस एनर्जी का प्रॉब्लम है। हम हर वक्त सर्कुलर डेट की भी बात करते हैं, IPPs की पावर की प्राइसिंग की बात करते हैं, सोलर सेक्टर के अभी मीटरिंग के उसके ऊपर इश्यूज चल रहे हैं। पाकिस्तान का मसला ये था कि पाकिस्तान के पास हमने ज़्यादा एनर्जी इंस्टॉल कर दी और उन सब एनर्जी जिन लोगों ने पावर प्लांट्स लगाए, हमने उनको गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस कर दिया। जब वो प्रोडक्शन पे आ गए तो हमने देखा कि हमारी तो डिमांड उतनी है ही नहीं, हमारी डिमांड तो उससे आधी है। मगर अब हमने, क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए थे कि इन कंपनीज को हमने पैसे देने हैं, बेशक हम उनकी एनर्जीज यूज़ ना भी करें, हमने फिर भी उनको पैसे देने हैं। तो उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन गया, जिसकी वजह से हमारा डेट जो है बर्डन है उसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज हो गया। बिल्कुल। बिटकॉइन, हम वो जो एक्सेस एनर्जी है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, वी कैन यूज़ दैट फॉर बिटकॉइन माइनिंग। तो इस पे मैंने आज से 4 साल पहले एक आर्टिकल लिखा, डॉन में पब्लिश हुआ, फिर खलीज टाइम में पब्लिश हुआ, और उस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसने मुझे बुलाया, मुझे कंसल्ट किया। एक उस ज़माने में एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक काउंसिल बनी थी, आई वॉज अ मेंबर ऑफ दैट। तो मगर ज़ाहिर बात है हुकूमत का उस चीज़ पे अटेंशन नहीं गई उस वक्त। मगर आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अब जो है गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है इस चीज़ पे। क्रिप्टो काउंसिल भी बनी है, बिलाल बिन साकिब जो उसको लीड करते हैं, वो बहुत ही एक अच्छे और एनर्जी वाले इंडिविजुअल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी अटेंशन और फोकस जो है वो टॉप लेवल से है। पाकिस्तान के हर इदारा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है और चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़े। जिस तरह आपको शायद मालूम हो कि जो क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन है वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, और काउंसिल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की भी रिप्रेजेंटेटिव है, IT के भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो आई एम होपफुल कि अब ये लोग जो काम करेंगे इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन भी होगी और साथ साथ रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन होगी, ताकि जो पाकिस्तानी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें वो जो स्कैम्स में फंस जाते हैं उनके जो उनके लिए सेफ गार्डिंग होगी। आपने के ट्रेड की बात की, तो हमारे के ट्रेड के लिए एज अ पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स, और जो आप काम करती है फॉर जिस पैशन से काम करती है, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट हो, वो चाहे डिजिटल एसेट्स में हो या वो स्टॉक्स में हो या बॉन्ड्स में हो या कमोडिटीज़ में हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल ऑफ पाकिस्तान मेक वाइज डिसीजंस, दे डोंट ट्रीट दिस एज गैम्बलिंग, दे डोंट ट्रीट दिस एज अ गेम। यू नो दिस इज़ मेरा एक बहुत बड़ा खौफ ही ये है कि पहली चीज़ तो हमने अपने PSX को इतना निगलेक्ट किया है, एंड इसमें आई हैव अ लॉट ऑफ fingers to point at certain, you know, people and authorities, but we'll come to that. But as far as crypto is related, मुझे डर ये है कि चलें, the world is doing it, but दुनिया में ना, अगर आप even if you take the US stock market, तो हर शख्स जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको इन्वेस्ट करने की अकल है, right? And a lot of us go लेके, ओ यहाँ इन्वेस्टमेंट कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंडिया ने भी तो क्रिएट किया, right? So my fear is कि चलें, we're getting on the regulation, right? लेकिन I don't trust people's intentions, because internationally आपके जितने financial advisors हैं, doesn't matter Bitcoin कहाँ से कहाँ चला गया, no financial advisor is going to tell you कि 5% से ज़्यादा अपनी total wealth का या total investment की amount की आप क्रिप्टो में डालें। लोगों को ये कौन समझा? मुझे तो डर है लोग अपने घर बेच के लगा देंगे, and then when the market comes down they'll freak out and they'll book losses. माशाल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसको रेज किया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनने से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट काउंसिल बननी चाहिए थी, क्योंकि ये स्टॉक्स एक बड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। Can you pitch for me to be on this council? You must be on it, and I wish the finance minister of Pakistan would be heading Pakistan Stock Market Council, because that has to do everything to do with Pakistani financial system, Pakistani capital markets, Pakistan's economy, and I wish, and it deserves more attention. So unfortunately ऐसा नहीं है, और होना चाहिए। So अगर आपका शो लोग जो सुन रहे हैं, I hope
कि उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप जितने बड़े भी रिस्क टेकर है ना, आपके एसेट एलोकेशन में डिजिटल एसेट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड stocks should be around 30% of your portfolio, Yeah. and real estate should be the remaining part of your portfolio. Yeah. तो अगर 30% आपको stocks है तो you should be spending more time understanding about companies which are listed in Pakistan, बिल्कुल. not just because you'll get a better return in them, but also because they're safer. मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी कज़न है, वो स्कूल में पढ़ाती है. उन्होंने मुझे कॉल की कि अली मैं तुम्हारा कंटेंट देखती रहती हूँ, तुम स्टॉक्स के बारे में बोलते हो, तो मैंने स्टॉक्स मार्केट में मैं इन्वेस्ट करती हूँ. मैंने थोड़ी बड़ी मुश्किल से सेविंग की हुई है थोड़ी बहुत, मगर मैंने ये इंपॉर्टेंट सेविंग है मेरी, तो मुझे बताओ कि मैं पैसा इसमें लूज नहीं कर सकती. No, she cannot put that in stocks. She asked me many times, and I said, you know, I thought कि I'll make her invest in safe stocks, और अगर कोई उसका पैसा डाउन भी होता है तो I will put the money in, so she won't lose money. So few weeks passed by. After that I asked her कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो क्या हुआ उसका. उन्होंने कहा मेरे कंपनी का CFO जो है ना, वो बाइनेंस पे इन्वेस्ट करता था, तो मैंने क्रिप्टो में लगा लिया. So the same person who was so risk averse, who was so worried about her money, was easy to invest in crypto and did not ask any question. So the point I'm trying to highlight is that हर बंदे के लिए, वो चाहे पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या इंडिया में हो, वो एजुकेटेड हो कि एजुकेटेड ना हो, the incentive for greed, the incentive for making quick money is such a innate incentive. हम सब के अंदर है वो, कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपको 20% रिटर्न मिलेगा इधर सेफली, और तो आप मुझे 10 सवाल पूछेंगे. अगर मैं आपको कहूँगा ना कि आप इधर पैसे लगा दो, डबल हो जाएंगे, तो आप फ़ौरन पैसे लगा देंगे. इसीलिए रेगुलेटर का रोल बहुत ज़रूरी है. इसलिए रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डबल शॉट स्कीम्स ज़्यादा आसानी से बिकती हैं और सीरियस कंटेंट ज़्यादा मुश्किल से बिकता I'll है. tell you, you know, like I've been pitching a lot of people VPS recently. मैं अपने Instagram पे बात करती हूँ इसके बारे में. We recorded an episode for Stock Talk, you know, on a detailed episode on VPS. लोगों के इतने सवाल हैं, इतने सवाल, और वही लोग पूछ रहे होते हैं पाइकॉइन का बता दें. बिल्कुल सही कह रही हैं. And I'm like, I'm sharing things with you that cannot go wrong. जी. आप एक टिपिकल VPS की स्कीम में एंटर कर लें. डोंट इवन टेक मैक्स इक्विटी एक्सपोजर. 30% इक्विटी एक्सपोजर ले लें. जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर 25 years एंड कम बैक टू इट. उसमें इतने सवाल, इतने कीड़े. नहीं, अगर हम मर गए तो फिर क्या होगा? आप whoever is your beneficiary, it will go to them. आपको फॉर्म फिल करना होता है प्रॉपर. लेकिन when it comes to अभी the alts are down, so we should invest in them. अच्छा, all time high लगाए, सुना है दूसरा हाई भी लगाएंगे, घुस जाते हैं. Then they come 70% down and they're like. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. Financial education is the harder work. It requires more effort. It requires more attention. It requires more passion. And pump and dump schemes are easy. अगर मैं आपके शो में बैठकर हम अगर डॉज कॉइन और किसी मीम कॉइन की बात करें, ट्रम्प कॉइन और मिलेनिया कॉइन की बात करें, तो आपके व्यूज़ भी ज़्यादा होंगे और आपको मतलब जो है लोग भी ज़्यादा देखेंगे. दैट्स द ईजी पार्ट. एज अ गवर्नमेंट एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम इस पंप एंड डंप टेम्पटेशन से बचें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्वेस्ट करना और वाइजली इन्वेस्ट करने को पे काम करें. That's more difficult route, and that's why मेरी पर्सनल अपील है गवर्नमेंट से, रेगुलेटर से, जो भी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट इदारे हैं, कि try to do the more difficult work, which might be harder and drier, which is more important for Pakistan. You know, one thing that I feel like they've really struggled to do, and we spoke about this on the Inside Scoop as well, right? So there's too many people who are too old sitting at the top levels. You know, and I have nothing against people who are older in age. The only problem is they're very rigid अपनी beliefs में. And in order to stay up to date in the world, you have to be adaptable. आप adaptable अगर नहीं होंगे तो आप अपनी relevance lose कर जाएंगे. Look at Elon Musk. Elon Musk ने पता है अपनी marketing team में किसको hire किया? पूरी Gen Z.
इतनी अजीब ट्वीट्स कर रहे होते हैं, मैं तो हंस के बुरा हाल हुआ because Gen Z started with me 1997, right? So I find it really funny. My sisters are much more Gen Z than I am. I'm more toward the millennial, way of thinking. But it works for him. It gets him virality. It gets him the eyeballs. ये लोग ऐसे हैं कि नहीं हमारी क्लास और ये what's the फायदा of your class with your $50 billion market cap? बिल्कुल, इट्स नॉट रेलेवेंट, इट्स नॉट बिग इनफ टू बी रेलेवेंट. तो मसला यही है कि जो रेगुलेशन बनी हुई है वो बनी है एक ऐसी मार्केट के बारे में जो स्टॉक मार्केट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिटर्न ज़्यादा है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा सेफर है, मगर उसमें उसको जो रेगुलेट करें उन्होंने इतना उसको छोटा कर रखा है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. और जो क्रिप्टो जिसकी ज़्यादा अडॉप्शन है क्योंकि वो जेन ज़ीज़ और यंग लोगों के लिए ज़्यादा अपील कर रही है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उस पर वाइल्ड वेस्ट है. और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है. और इसलिए मेरे ख्याल में जो बिलाल बिन साकिब जैसा जो CEO है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के, ही इज़ अ यंग गाय, सो आई थिंक ही कैन अंडरस्टैंड इट एंड ही कैन ब्रिज दैट गैप. Mohammad Aurangzeb is also really cool. Gee, he must be, and then he has a stellar track record I in just his hope career. people listen to them because I feel like even on the Inside Scoop, I've had so many great financial minds. I feel like उनको इस तरह कर दिया जाता है. I don't know. I have not dealt with him or worked with him, so I can't share. But I wish that certainly the stock market requires more of his attention, and I wish that he spends more The time. stock market working on requires that. more of everyone's attention. जी. I really feel like we're out here holding it up as much as we can. मगर it's more important. I think आपका जैसा program है, you have such a wide audience who watches it, and young लोग भी और housewives भी और everybody watches your show. But Mashallah. it's still so niche. हाँ, Stocks मगर- are still so niche. Magar, I think the important thing is, which you have made people realize more than others, that stock market में you get great returns, and it's important and it's cool. And it's And not I think satta. It's not satta. Investment is sexy. हाँ, बिल्कुल. So I think that's really important. And that's the difference between, we were discussing कि पाकिस्तान और दुनिया भर में बाकी difference क्या है. जो main difference है ना, कि जब मैंने ऑक्सफोर्ड से graduate किया था और कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट करता है बाहर, his most desired job is to work on Wall Street. Yes. मतलब his icon, his role models are people like Warren Buffett, George Soros. मतलब, these are people you inspire to be. Steve Cohen. So, आप जो brightest, most difficult jobs to get are the jobs in finance. मेरे पास जब मैंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट किया, मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थी. एक थी गूगल में, जहाँ पे सुंदर पिचाई जो अब उसका CEO है, he offered me to join his team. मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ Marissa Myers के साथ, जो बाद में याहू की CEO बन गई, और मेरा कॉन्टैक्ट डायरी पेज में खुद पढ़ लिया. I did not take that job because I joined UBS to do technology research, because the job in the financial market was far more prestigious, well-paying and aspiring than even Google. You're so cool. Thank you. But in Pakistan, that hasn't happened. We have not made role models out of our financial markets. In fact, we have made them to Be look daunting, Yes. condescending, Yes. सिर्फ बुढ़े मर्द आ सकते हैं यहाँ. scary and not Scary inspiring. and uninviting, Yes, and yes. फिर सट्टे का नाम लग गया. Yes, और उसमें में हमें थोड़ी सी हाँ, और क्रिप्टो में जिसमें सारा है ही सट्टा, उस पे वो चीज़ नहीं है. उस पे no, this is where you're gonna get rich. It makes billionaires. So, and although we have so many inspiring stories in Pakistani stock market, if you look at the people who all the senior guys in the stock market, there's so many rag to riches stories. People who didn't have anything, but they were, and they became millionaires and billionaires. And I find their stories so fascinating. I've met with some of them. People like Akil Karim Dedi or Arif Habib. If you they are geniuses. Yeah. They are geniuses. And Those are pioneers of the market. And then they have made a lot of money from the market. Yeah, they're So- cold hard proof. Yeah, so they're geniuses in maths. Yeah. Their ability to comprehend and And analyze also numbers. in human behavior. Human behavior. Bilkul. So I have a lot of respect and admiration for these people, and I think we need to celebrate their success. Yeah, definitely. And that hasn't happened in Pakistan, and I think that's the issue. That their stories need to be told to people, especially younger people. Because if they can do it, so can everybody else. And you just need to be in it.
Yeah. So I think you're doing a great job, and I'm delighted to be on your show because of Oh that. no, that's very kind of you. So, Abhi, we were speaking about, like how the government should focus more on the stock market, right? But now the Idara itself, PSX, right? They get commissions per trade. उनकी एक responsibility है to market themselves, all right? And I mean, they have apparently, an entire marketing department, but I don't know who is sitting there sabotaging my sweet Pakistan stock exchange, but they failed miserably. Why? What do you think? Because like I've been to so many of these events, the gong ceremonies, and they're so great, but they don't get coverage, right? They're not spoken about. No one's posting about them. No one's talking about it. It's like only we know about it, right? And I keep trying to put it out there, but it's like it's just me. But it's because it's not exciting, and it's not exciting because पहले आपको सोचना, वही मैं बार बार एम्फोसाइज इसलिए करता हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा कि और समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या. Yeah. स्टॉक मार्केट एक मार्केट है. ये एक मंडी है जिसमें मार्केट में किस चीज दो बायर को और सेलर को मिलाती है. Yeah. बायर कौन है, सेलर कौन है? सेलर वो है जिसने कोई बिजनेस लॉन्च करना है, जिसने कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी करनी है. वो मार्केट में आता है और कहता है कि मैंने ये बिजनेस लॉन्च करना है, आप मुझे इन्वेस्ट करें, मैं आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा. और जब आप इन बायर्स और सेलर को मिलाते हैं तो फिर एक एक्साइटिंग काम होता है. आप किसी भी दुनिया की मंडी में चले जाए, आप बकरे की मंडी में चले जाए, वहाँ पे एक शोर और गोल और एक हंगामा होता है और एक बार्गेनिंग हो रही होती है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग एंड दैट्स व्हाई पीपल कम टू अ मार्केट. बचपन में हम छोटे होते थे ना, तो पेरेंट्स के साथ जुमा बाजार लगता था, हम वैसे ही चले जाते थे, कुछ ना भी खरीदना, क्योंकि एक एक्टिविटी होती थी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लॉस्ट दैट बिकॉज द रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये जो है ना कोई सरकारी इदारा है, ये कोई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है. तो हमने उस मार्केट को यूटिलिटी स्टोर बना दिया है. यूटिलिटी स्टोर में कोई नहीं आता. I think we also need that in the regulatory framework, right? I think it's important कि लोगों को accountable hold किया जाए. For example, again, your finance ministry will probably have to decide कि अच्छा हमने ये गोल बना दिया है कि हर साल स्टॉक एक्सचेंज को इस परसेंटेज से ग्रो करना चाहिए. Now, whoever is on the board of the PSX, of PMX, if those goals are not reached, and keep them realistic, but if those goals are not reached, hold them accountable. जब तक आप लोगों को accountable नहीं hold करेंगे, right? They're not going to feel a sense of urgency. Not everyone like you and me jumps in, just wanting to do it for the sake of our love for capital markets. There's not enough people. You're right. For not just for stock market, I think for every aspect of Pakistan's economy, whatever KPIs are being set, they should be measurable and they should be public and people should be judged against them. So that's true for any plan. And मैं सऊदी में, जैसे आपको पता है, मैं सऊदी में काम करता हूँ. हमने के ट्रेड को सऊदी अरेबिया में भी लॉन्च किया. वहाँ पे विजन 2030 और विजन 2030 की सक्सेस का जो मेन रीज़न वो ये है कि उनके स्पेसिफिक KPIs है जो मेजरेबल है, जो पब्लिक है, और उस पर पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल इफ दे डोंट मीट दैट. सो यू राइट. मगर आई थिंक द मेन थिंग फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज दैट इट्स अ कमर्शियल एंटिटी एंड कमर्शियल एंटिटी का मोटिव होता है प्रॉफिट. और जैसे आपने कहा कि वो कमीशन अर्न करती है एंड उसके जो शेयर होल्डर्स है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स है. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ यूटिलिटी स्टोर. इट शुड बी ट्रीटेड एज अ मार्केट एंड विच हैज़ प्रॉफिट मोटिव्स. सो आई थिंक लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए it's important that people of Pakistan understand that go to stock market because it's a market where you can invest in great companies. So don't go there because they're calling you or they're inviting you or because they're giving you ads and that. Of course you won't go there. You will go there आप सिर्फ जब जाओगे कि अगर आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रैग टू रिचेस स्टोरी हो सकती है. आप जो है थोड़े पैसे से रिस्क लेकर ऐसे बिजनेस इन्वेस्ट करके जो ग्रेट रिटर्न करें. अगर आप सिस्टम्स की मैं मिसाल दूँ या इवन TRG की मिसाल मैं आपको दूँ. TRG is one of my favorite stories. You know, the stock used to trade at 1 rupee. अभी आज से 10 साल पहले it was less than 10 rupees. अभी बायबैक 75 rupees का हो रहा है. It touched a high of 150 rupees. Systems का share price used to be at 20-30 rupees. Yeah. Today
after giving dividend and bonus adjustment, it's like 400, 500, close to 500. So you could have become very rich just by investing these stocks. Yeah. So, and these are safer, real companies rather than Trump coin or Millennia coin or Dogecoin. Allah, what is this? How can people put their hard-earned money? Like, the reason I love researching companies, right, is like sometimes I'll find companies and I'll be like, oh my God, the CEO is a total crackpot. I love it. He's a madman who's constantly focused on expansion. And those are the kind of managements that I look for, right? Because I think I'm half crack, right? And those are the kind of people I look for, people who don't care about profit, who care about growth, who care about making something that's going to be a legacy जो आप पीछे छोड़ते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपसे बड़ी हो. Like, I'm never going to be as big as the Pakistan Stock Exchange. I'm happy to bring more people toward it, right? Because some things are bigger than you. But when you look into coins, what are you going to look at? आप lockup period देखेंगे, आप ये देखेंगे कि creator कौन है, team कौन, like, there's nothing exciting about it. Sure, the charts are ridiculously volatile. आपको anxiety होती है देखते हुए. Other than that, मैं और कोई excitement नहीं देख सकती. एक fundamental level पे, there's no beauty in it. हालांकि our stock market, it has some stunning companies in it. Ji, so there are two things. The first thing is that I believe in the future of digital assets. जैसा मैंने बोला कि I work for that. I've been working in this sector. Yeah. Bitcoin was launched in 2009-10 and I wrote my first report on it in 2011-12. Yeah. So I've been in it for a very long time. Yeah. I do believe that digital assets में एक ऐसी खूबियाँ हैं, खासतौर पे Bitcoin में, कि it can be used, it is being used for transforming the global financial markets. यही सिर्फ खूबी कि आप पाकिस्तान में बैठकर और कोई बंदा टर्की में बैठकर, कोई बंदा नाइजीरिया में बैठकर, कोई बंदा अर्जेंटीना में बैठकर, वो सब उसी मार्केट को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं. दैट अलोन इज क्वाइट पावरफुल एंड लिबरेटिंग. See, so Bitcoin brings utility, right? And so do certain other coins, and mostly it's just memes. Absolutely. So there is value in it. मगर unfortunately, because this sector was not regulated globally, in the past इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम्स हुए हैं. और अब अगर आप दुनिया में देखें तो वैल्यूएबल और रियल प्रोजेक्ट्स बहुत थोड़े हैं और स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं. अब मैं अगर आपको यूएई की एग्जांपल दूँ तो यूएई ने अपनी रेगुलेशन बनाई है. मतलब यूएई इज़ वन ऑफ द हब फॉर डिजिटल एसेट्स. उनके अप्रूव्ड टोकन जो है ना सिर्फ 5 है. ओनली 5 coins have they allowed the companies based in Dubai to market to people in Dubai. बाकी वो कहते हैं दुनिया भर में बेचते रहो, हमारे लोगों को ना बेचना ही है. हमारे लोगों को ये सिर्फ 5 कॉइन है जो अलाउड है. वो बिटकॉइन है, एथेरियम है, रिपल है, टॉन है और लाइट कॉइन है. ओनली 5 आर ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट. एवरीथिंग एल्स इज नॉट अप्रूव्ड फॉर देयर ओन पीपल. वो कहते हैं अब बाकी मुल्कों में जो बेचना है बेचो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पैसे लूज करने दो, हमारे पीपल को सेव करो. तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा ज़रूरी है कि जब हम रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं हम अप्रूव्ड लिस्ट लाएं ताकि पाकिस्तानी लोग जो पंप एंड डंप स्कीम्स है और जो स्कैम्स है उससे बचे रहे. इसलिए रेगुलेटर का इस एरिया में बहुत बड़ा रोल है और इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान में रेगुलेटर हैज़ स्टार्टेड टू लुक एट इट. क्योंकि वो ना सिर्फ उन चंद प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उन सब को ब्लॉक भी कर सकता है जो स्कैम्स है. और ये रेगुलेटर को ये काम करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, उसमें जो है ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. उसमें जो सारी कंपनीज जो लिस्टेड है वो पहले प्री चेक होकर आती हैं और फिर वो इन्वेस्टर्स के पास जाती है कि आप हमें पैसा दो ताकि हम ग्रोथ की तरफ जा सकें. एंड दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट इज फार मच मोर रेलेवेंट फॉर पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी रेगुलेटर्स. You know, there's one thing जो मतलब which is why I'm so fond of you, जो बहुत लोगों में नहीं है in our financial markets. मैं बहुत लोगों से मिली हूँ and I think one place where we as a nation are lacking, right? And as an industry, like the finance world, vision. हमारी जितनी brokerages हैं, AMCs हैं, आपके जो brokers themselves हैं, फिर आपके जो asset managers हैं, I would say about 80% of them जिनसे मैं मिली हूँ, right? Because अब मिलना जुलना होता है,
वो सब आपस में ही इतना लड़ रहे होते हैं, मतलब नॉट इवन एएमसीज आपस में या ब्रोकरेजेस आपस में, वो अपने इदारों के अंदर कि मेरा वॉल्यूम इस बंदे जितना नहीं है, नहीं मैं इतनी, एंड आई एम लाइक हाउ इज योर इंडस्ट्री गोइंग टू ग्रो अगर आप अपने नेबर के साथ लड़ रहे हैं, राइट? योर विजन हैज़ टू बी बिगर देन दैट. अगर मैं सोचती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन AMC, आई एम गोइंग टू थिंक हाउ कैन आई गिव माई कस्टमर्स access to the US stock market? How can I give them access to the Middle Eastern stock market? How can I hire people who could maybe make a commodities fund? How do I get PMEX to have so many people over there कि वो मुझे उस that amount of commodities provide कर सकते हैं मुझे कि मैं उसका एक पूरा fund बना सकूँ? Because right now the PMEX can't even give you that much gold that your asset management companies can even have a gold fund. We only have one, and वो भी बेचारा 80% capacity पे बैठा हुआ होता है at that time, right? So there's a lack of vision. आपस में हम अगर इतना लड़ते रहेंगे, and this is the problem with us as a country, there is no unity, there is no sense of brotherhood. How can we fix that? जी, तो रमज़ान का महीना है. इट्स ऑल अबाउट collaborations and helping each other and having a common single goal, both as a nation, as Muslims, as Pakistanis, and as people associated with Pakistani capital markets and Pakistan's economy. तो आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि कोलैबोरेटिव एंड कॉमन विजन, एक कॉमन गोल, एक कॉमन नॉर्थ स्टार होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए. मैं वही आपको सऊदी की एग्जांपल दूं कि विजन 2030 ओवर देयर इज़ देयर कॉमन नॉर्थ स्टार. दे ऑल नो दैट दिस इज़ व्हाट वी वांट टू स्ट्राइव फॉर. नाउ कमिंग टू पाकिस्तान मार्केट, दैट्स व्हाई आई लव स्टॉक मार्केट. दैट स्टॉक मार्केट gives you inclusive growth. Yeah. If I am a shareholder in Mia Manshah's company or Jahangir Sareen's company or Sayyid Babar Ali's company, I'll be cheering for those guys. जब वो उनकी businesses अच्छे करेंगे मैं कहूँगा great, क्योंकि मैं उसका शेयर होल्डर हूँ. मैं कहूँगा आप ज़रूर अच्छा करें, मुझे फ़ायदा होगा. तो and that's why the stock market is, I think everybody in Pakistan should sponsor it and cheer for it and champion it. Because अगर आपकी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आएगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, तो जो पैसा की बेनिफिट सिर्फ एक छोटे से तबके को होता है वो पूरे अवाम को होगा. अगर मैं फौजी फर्टिलाइज़र का शेयर होल्डर हूँ और मारी पेट्रोलियम का शेयर होल्डर हूँ, तो जब फौजी फाउंडेशन की कंपनी अच्छा करेगी तो मैं खुश हूँगा. मैं कहूँगा और बेहतर करो, और ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ, और ज़्यादा डिविडेंड दो, क्योंकि इस डिविडेंड का फ़ायदा पाकिस्तान के हर उस शेयर होल्डर को हो रहा है जो इस कंपनी का शेयर होल्डर है. और कोई भी इसका शेयर होल्डर हो सकता है. वो बलूचिस्तान में वो शेयर होल्डर हो सकता है, वो कोयटा में बैठा हो, वो सिंध में बैठा हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हो, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो उस शेयर होल्डर होकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट इज सो इम्पोर्टेंट. एंड यू आर राइट, इट ब्रिंग्स अस टुगेदर. It's supposed to, at least, It automatically it aligns your incentives. और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मैंने एट के ट्रेड मैं हमेशा बाकी सारे ब्रोकर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ. और इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जैसा आई एम inspired by Akil Karim Dedi, I'm inspired by Arif Habib, I'm inspired by Jahangir Sadiqi, I'm inspired by Nasser Ali Shah Bukhari, Khadim Ali Shah Bukhari. Because these are the people who believed in Pakistan, who invested in Pakistan, and they got great returns from it. I want to follow them. So they're not, the other brokers are not my competitors. My competitors are the unregulated platform, the speculative platform, jua, speculation, or and the double shots. Or my goal is to help people. My goal is, because if my clients make money, then I make money. I'm not prop trading. I'm not investing my own money in the stock market. I'm only advising other people. So we make money when our clients are happy. And that's why it's a mission-oriented work. Yeah, most certainly. So abhi our current government has done a great job when it comes to हमारी economy को stabilize करना, and लेकिन हमारे लोग बहुत skeptical रहते हैं about things, and rightfully so, क्योंकि what ends up happening is कि हमारी ये monetary policy comes expansionary, फिर inflation starts going crazy, लेकिन आपकी GDP growth नहीं हो रही होती, आपकी population is rising rapidly, लेकिन आपकी GDP for some reason is not, आपके exports नहीं बढ़ रहे, your current account deficit is increasing. But how can we possibly
try to get our economy to reduce its reliance on imports, and then also at the same time how can we try to expand our own local industries while increasing the GDP, because we're as a country really suffering due to our current account deficit. आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला, और इस चीज़ का मसला भी वही है जो हम पहले मसले डिस्कस कर रहे हैं कि वी शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स एंड बी आर पीपल नीड फाइनेंशियल एजुकेशन. लिटरली इट्स द सेम 2 पॉइंट्स. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. क्योंकि पाकिस्तान में और किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में जीडीपी ग्रोथ को शॉर्ट टर्म पुश करना बड़ा आसान होता है. आप लोगों को फ्री के पैसे दे दो, वो पैसा जो है वो स्पेंडिंग करेंगे. जब स्पेंडिंग करेंगे आपकी इकॉनमी ऊपर चली जाएगी. आपके अमेरिका की एग्जांपल ले ले, कोविड आया, यूके में भी कोविड आया, तो गवर्नमेंट ने फ्री के पैसे दे दिए लोगों को, लोगों ने पैसे स्पेंड किए, इकॉनमी ऊपर चली गई. मगर उसका एग्जैक्टली ना सिर्फ इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपके मुल्क का डेट बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा आप कहीं से तो लेना है आपने. मगर उससे दैट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर ब्रिंगिंग ग्रोथ. तो होता है क्या है पाकिस्तान में कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, उसको अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए खास तौर पे इलेक्शन के करीब वो ये करती है कि इंटरेस्ट रेट नीचे ले देती है, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे देती है, और कहती है कंस्ट्रक्शन में घर बना लो, ज़मीनों में आप नई प्रॉपर्टी स्कीमें खोल लो. उसकी वजह से इकॉनमी बूस्ट हो जाती है. वो जाके हुकूमत, वो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों को कहती है देखो हमने 6% ग्रोथ कर दी है. वो हुकूमत, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, और फिर हम तबाही की तरह चले जाते हैं. यही मसला पाकिस्तान में पिछले 60 सालों से हम डील करते रहे हैं. ज़रूरी इस हुकूमत ने आकर बड़े अरसे बाद इस ट्रेंड को ब्रेक किया, और इस हुकूमत ने कहा कि हम जो है पॉलिटिकल शॉर्ट फिक्सेस पे नहीं जाएंगे, और हम स्टेबल सस्टेनेबल ग्रोथ बनाने की कोशिश करेंगे. एक्सेप्ट फॉर द करंट सर्कुलर डेट 1.25 ट्रिलियन. जी, वो एक सर्कुलर, उस पर भी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं. पावर सेक्टर्स में टैरिफ्स बढ़े, ये पेनफुल प्रोसेस है. इसमें आपका पॉलिटिकल कैपिटल एरोड होता है, और so that's suffer why, right now and reap the benefits later. जी, तो इसलिए that's why we must give credit to the prime minister, and because he took that damage, took that bullet और for हमारे himself. लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी ऊपर से ना इकोनॉमिक अवेयरनेस है ना फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो उनको लगता है कि they're suffering because they're so used to short term fixes. एब्सोल्युटली. तो जब गवर्नमेंट ने आके, अगर आपको याद हो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट था बहुत बड़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो गवर्नमेंट ने आके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई तो महंगाई और बढ़ गई. एक्सचेंज रेट को डिप्रिसिएशन किया, महंगाई और बढ़ गई. लोग बहुत पैनिक में थे. 30% पे इन्फ्लेशन थी, मगर आज वही इन्फ्लेशन 3% पे आ गई. तो दे हैव प्रूवन दैट गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस वर्क्स. पॉलिटिकल शॉर्ट फिक्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, और आपको अपने पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर इकॉनमी के लिए काम करना चाहिए. सो दैट्स वन. द सेकंड थिंग इज़, जो लॉन्ग टर्म फिक्स है वो यही है कि इन्वेस्ट इन एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज, बिल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग बेस, बिल्ड योर टेक्नोलॉजी बेस, एजुकेट पीपल so that you have trained workforce who build businesses rather than speculative real estate, gold. अभी आप कभी क्रिप्टो में लगा दो. मतलब don't go for short term fixes, don't go for pump and dump schemes, don't go for quick marketing wins. Do the hard thing. And they end up becoming people's liquidity. See, doing the hard, you have to do the hard There are thing. no shortcuts in There are life. no shortcuts. Yeah, no, 100%. Are there any closing notes that you would like to give our audience? Some advice to new investors? Some words that might शायद उनके confidence को थोड़ा boost करें regarding the future of our stock market? Gee, unfortunately, I think we spoke a lot more about the bad stuff about Pakistan's economy, and but we should definitely be more positive. और अगर मैं आपके जो audience है उनको कोई एडवाइस, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई डू थिंक दे शुड इन्वेस्ट इन डिजिटल एसेट्स, मगर दैट्स 3 to 5%. एंड उसमें आई थिंक दे शुड जस्ट फोकस ऑन द मोर स्टेबल अप्रूव्ड वंस. दुनिया भर में यूएस जो है, जो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व उन्होंने अनाउंस किया है, वो बिटकॉइन और उसके साथ 3 और डिजिटल एसेट्स है जो उन्होंने अप्रूव किया है. वो खुद भी, यूएस गवर्नमेंट भी खुद ट्रम्प कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रही. तो दैट्स अ सिग्नल फॉर यू कि यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट. सेकेंडली,
And I do think digital assets adoption will increase. Secondly, Pakistani people should invest in stocks, because in stocks you get great returns. And Pakistani stock market is very underpenetrated, जिसकी valuations, जिसका मतलब ये है हमारी valuations बहुत cheap है. So you right now, if you invest in Pakistan, you'll get even better returns because you're buying it at cheap, you're buying great quality companies. But do your research, spend time on educating yourself, because your biggest asset is not your home, it's not gold, it's not your crypto. Your biggest asset is you. So invest in yourself. And how can you invest in yourself? By investing in your health, investing in your family, investing in your education. आपके पास दो चीज़ें, आपकी बॉडी और आपका दिमाग है. बॉडी में इन्वेस्ट करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें अपनी, और दूसरा अपने दिमाग का ख्याल रखें बाय इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन. जब आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आप खुद ही आप अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी करेंगे. तो जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे कि यार मुझे कोई टिप दे दो, मैं ये स्टॉक खरीद लेता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, पहले मैं सीखूँगा, समझूँगा, और फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने पैसों के लिए. अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, आपकी जो सेविंग है, ये आपके पैसे जो है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है. आप इसको रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें, इसे गैम्बलिंग की तरफ ना लेके जाएं. और यही मेरी एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है कि आपने, इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज अ फोकस ऑन डिजिटल एसेट्स. ट्रीट इट seriously, don't treat it like pump and dump and marketing wins. Build something on it. And similarly, there's the bigger financial markets require greater attention from you. So, Mr. Finance Stock Market Minister, Council with me and Ali Fareed. I don't need to be in it. You must be in it. And I think Pakistan will do really well, and people of Pakistan will do very well. And when these people get great return on their investment, जब आपके जो ऑडियंस आपका जो शो देख रही है, जब इनके पैसे बनेंगे ना, जब भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, जब भी के ट्रेड सक्सेसफुल होगा, जब भी आपका शो सक्सेसफुल होगा, जब भी आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, जब भी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी. सो इट्स आवर कलेक्टिव डिजायर टू हेल्प. And we all have one goal, for Pakistan's economy to do well, for our investments to be fruitful, and for capital markets that are regulated over here to grow. Absolutely. Thank you so much for being on the show. I really appreciate it. Absolutely my pleasure. And आप लोगों से मैं मिलूंगी अगली दफ़ा on Stock Talk. Thank you for being with us, and remember, always be kind to people. किसी का दिल ना दुखाएं. Karma is real. It always comes back to you. Take care. Bye.